Hello students, welcome to Infinity Learn by Shri Chaitanya. I am Anshul Tomar, your mathematics mentor. So welcome to this amazing session of JEE Advanced 2023 live and detailed analysis. तो सबसे पहले please tell me students कि कैसा हुआ आप लोगों का एग्जाम. How was your exam? You must be tired after giving both the shifts. लेकिन फिर भी मुझे बताओ कैसा हुआ आप लोगों का एग्जाम. How was your paper 1 and how was your paper 2? Yes. Hi Catalyst Plays, IL Fan Club. हाय देविक, हाय निधि, हाय चंदन, कनिक चावला, सभी बच्चों को गुड इवनिंग एवरीवन and welcome to Infinity Learn JEE channel and welcome to once again to the detailed analysis of JEE Advanced 2023. Both of the papers have just been finished. है ना, दोनों पेपर्स खत्म हो चुके हैं. नाउ यू आर फ्री, बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड हो. बट स्टिल टेल मी हाउ वाज योर पेपर. और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसा पेपर आया, हाउ वाज द पेपर, व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन बोथ द शिफ्ट्स, पेपर 1 एंड पेपर 2. व्हाट वाज द चैलेंजिंग पार्ट, व्हाट वाज द इजीएस्ट पार्ट. सो विल डिस्कस एवरीथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म इन दिस सेशन. तो सबसे पहले बताओ हाउ वाज योर पेपर. यस, सो गॉड फेरी, आई डिड वेल. निधि, अच्छा था सर. चंदन इज सेइंग ठीक था. ओके, सो पेपर 1 पेपर 2 में से विच पेपर वाज मोर टफर, ये बताओ सबसे पहले. टेल मी वन थिंग, पेपर 1 या पेपर 2? पेपर 1 पेपर 2 में से कौन सा टफ था, कौन सा टफ लगा? Then I will tell you our analysis because students have given us the analysis. All the Infinity Learn and Shri Chaitanya students have given the feedback that which paper was tough. And so आज हम discuss करने वाले हैं कि कौन सा paper tough है, कौन सा easy था, which section was tough, what was the pattern of the exam. So we'll discuss it everything in this detailed analysis. And in the end, I will tell you the qualifying criteria also, that how much percentage you need in each and every subject to qualify in JEE Advanced. Okay, yes. So paper 2 was tough. Sarwan around 200. Okay, very nice, Sarwan. Devik paper 2, Nidhi paper 1, Bharat paper 2, paper 2. So there is a kind of mixed kind of reactions which I am getting from all the students. In fact, I was just chatting with some of you on Telegram. So students were having the mixed kind of reactions. कि sir paper 2 tough था. Many students were saying paper 1 difficult था. So mixed kind of reactions है. But I think the more votes are from paper 2. कि बच्चे कह रहे हैं कि paper 2 is actually more tough than paper 1. But chalo, it's perfectly fine. It's relative. Yes. Octagonal with circle radii to maximum area question sir. Maths थोड़ा tough था, बाकी सब ठीक था. Yes. तो चलो, let's start with this analysis. But before starting the analysis, just share this session to everyone because this will be the accurate analysis out of all. So आज सबसे ज्यादा accurate analysis आपको मिलने वाला है. तो do share this session. जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बता दो सर लाइव आ चुके हैं एंड वी आर डूइंग इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल इज डूइंग द लाइव एनालिसिस. ठीक है, और एकदम एक्यूरेट एनालिसिस होगा. एंड टुमारो विल बी गोइंग लाइव फॉर पेपर डिस्कशन बिकॉज आज रात में द पेपर विल बी अपलोडेड ऑन द जेई वेबसाइट एंड टुमारो मॉर्निंग वी विल बी गोइंग लाइव and doing both the papers detailed discussion. And after that एक better idea लग जाएगा what will be the expected cutoff, how was the paper compared to 2022 2021, because the students are speculating कि paper was tougher than 2022, some are saying no, paper was easier than 2022. The cutoff will rise or cutoff will drop down. That we'll see after JEE uploads the paper. But still एक initial reaction और एक immediate reaction बच्चों से मिला है, टीचर्स से मिला है. तो आज वो एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं. So yes, are you ready guys? पहले बताओ मुझे. Everybody ready? Yes. सर कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों, बताओ. चलो बताओ भाई बच्चे आपस में. You can discuss it that how many marks are you getting, what are the number of questions have you attempted in the exam. So just एक बार सब बच्चे बताओ मुझे कितने बच्चों ने आज 51 क्वेश्चंस आए थे टोटल मिला के. 51 and 51 102 क्वेश्चंस. And the cutoff criteria, I already told you in all my sessions, was 40%. So if you have done more than 40% in JEE Advanced exam, then expect a good rank. Expect a rank at least under 5,000 rank. At least. है ना, तो 40% मतलब कि अगर आपने टोटल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं in both the paper 1 and paper 2, then you can expect around 5,000 or below 5,000 rank. ठीक है, ये अभी इनिशियल रिएक्शंस के बेसिस पे आई एम टॉकिंग. ओके, यस. नेगेटिव नहीं था तो उसमें से सारे कर दिए. यस, नेगेटिव मार्किंग में भी रिलीफ था. एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिलीफ पता है किसमें था? मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में. मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस वाज 3 क्वेश्चंस इन ईच पेपर in paper 1 and 3 questions in each paper
in each subject in paper 2. So सिर्फ 3 questions आया multiple correctly. That was the biggest relief, and the more emphasis was on एक तो आपका सिंगल करेक्ट था, न्यूमेरिकल टाइप था, एंड ऑब्वियसली एक पेपर में मैट्रिक्स और एक पेपर में आपका पैराग्राफ वाला था. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस. तो सबसे पहले लेट्स डू द पेपर 1 एनालिसिस. पेपर 1 में इट वाज बेसिकली अ कॉमन टाइप ऑफ पैटर्न, बट जो मेन राहत थी, है ना, दैट वाज मल्टीपल करेक्ट में देयर वाज ओनली 3 क्वेश्चंस, +4 मार्किंग एंड -2 नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल, एंड पार्शियल मार्किंग वाज देयर. ठीक है. सेक्शन बी यू कंटेन्स सिंगल करेक्ट, 4 क्वेश्चंस +3 -1, नॉर्मल जो मार्किंग होती है. इट वाज अ नॉर्मल काइंड ऑफ पैटर्न, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन इट. Okay, then section C contains integer type, 6 questions +4 marks, 0 negative marking. That means यहां पे आप तुक्का लगा सकते थे. लगाया कि नहीं लगाया? Yes. बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लगाते हैं. If you have not solved the question, तो आपको कुछ भी तुक्का यहां पे लगाना था. तो yes, that was integer type. Okay, and last one was matrix match the following, which contains 4 questions. ठीक है, +3 marks -1. इसका मतलब यहां पे ये भी सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस थे, बिकॉज यहां पे क्या होता है, मल्टीपल मैचिंग नहीं होती, सिंगल 1-to-1 मैपिंग होती है, एंड द ऑप्शंस आर गिवन फ्रॉम 1 to 1. आई थिंक उस ऑप्शंस में से टिक करना था. दिस इज काइंड ऑफ ए सिंगल करेक्ट ओनली. तो ऑर्डर ऑफ द पेपर जो आपको अटेम्प्ट करना था, मैं हमेशा बोलता हूं, फर्स्ट यू नीड टू अटेम्प्ट इंटीजर टाइप, सिंगल करेक्ट, मैट्रिक्स, एंड देन लास्ट में मल्टीपल करेक्ट. इसी ऑर्डर में पेपर सॉल्व किया होगा तो यू मस्ट हैव डन वेल, एंड आपका स्कोर भी इट हैज मोर चांसेस टू मैक्सिमाइज. ओके सर, आईटीएफ वाला क्वेश्चन सम ऑफ फ्रूट वाला लगाया. हेलो सर, हाय बेटा. सर जो मुझे नहीं आ रहा था इंटीजर में सबसे 4 लगाया. यस, तुक्का बहुत सही लगाया. तुक्का लगाना बहुत जरूरी है अगर इफ इट डज नॉट कंटेन एनी नेगेटिव मार्किंग. ओके, so yes, so this was the pattern, and this was kind of a normal pattern जो अक्सर JEE Advanced में देखा जाता है. It was nothing new, nothing extraordinary in this pattern. In fact, pattern wise the paper जो paper setters थे, they gave you some relief because multiple correct में they asked only 3 questions. It was the first time for since many years कि उन्होंने सिर्फ 3 सवाल पूछे हैं, है ना. जनरली मल्टीपल करेक्ट में they ask you 6 questions or maybe 8 questions, but so this was the relief. चलो, so if I talk about maths, the difficulty level of maths, out of 17 questions asked in maths, total 51 questions asked, and total marks was 60 60 60 180 marks of paper 1. So 6 questions were medium, 5 were easy, and 6 were tough. अच्छा, easy में some students told me कि सर एक तो वो क्वेश्चन आया था इनवर्स वाला. इनवर्स क्वेश्चन वाज वेरी इजी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इफ यू रिमेंबर tan इनवर्स tan x वाला क्वेश्चन, है ना, दैट वाज रियली इजी क्वेश्चन. पैराबोला वाला क्वेश्चन वाज वेरी इजी, जो नॉर्मल वाला सवाल था. ठीक है. टफ क्वेश्चंस में आई थिंक प्रोबेबिलिटी विद एरिया वाला जो क्वेश्चन था, दैट वाज क्वाइट टफ, आई कैन से लेंथी, है ना, जो दैट वाज अ यूनिक क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड. उसके अलावा फंक्शन से काफी सारे क्वेश्चंस थे जो डिफिकल्ट थे, जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताए. तो यस, ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि पेपर की जो क्वालिटी थी, पेपर का जो लेवल था मैथ्स में, इट वाज टफ. ठीक है, यू कैन से दैट टफ, एंड 6 मीडियम एंड 6 टफ. तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर आपने इस ओवरऑल पेपर में आउट ऑफ 17 इफ यू हैव डन 6 or 7 क्वेश्चंस करेक्ट, तो यू कैन एक्सपेक्ट ए गुड रैंक, गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स. ओके, यस, मैथ्स पेपर वाज रियली टफ, क्योंकि 6 क्वेश्चंस टफ आए थे, एंड 5 जो 6 मीडियम थे, द मीडियम क्वेश्चंस वर आल्सो लेंथी क्वेश्चंस. सो लेंथी क्वेश्चंस थे, इजी थे 5. जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन वाज इजी, है ना, यू कैन से इनवर्स क्वेश्चन वाज इजी, पैराबोला क्वेश्चन वाज इजी, है ना. तो कुछ क्वेश्चंस जो थे दैट वर इजी, और बाकी जो क्वेश्चंस जैसे फंक्शंस के आए थे, है ना, तो वो क्वाइट टफ क्वेश्चंस थे. उसके अलावा आई थिंक एक लिमिट का क्वेश्चन था fx into gx वाला, इट वाज अ टफ क्वेश्चन. ओके, एरिया एंड प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन भी टफ था. वेक्टर थ्योरी के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, दैट वाज लेंथी. सो यस, ओवरऑल द पेपर वाज लेंथी एंड टफ. And if you have done 40% of this paper, 17 में से if you have done around 7 questions, तो you can expect a decent marks, a decent rank. ठीक है? Okay. सर आपने सिमिलर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में लास्ट के मॉक्स में करवाए थे. बिल्कुल. सी, JEE एडवांस के लिए द स्टूडेंट्स who have seen our lectures on Infinity Learn JEE YouTube channel, उनको बहुत एडवांटेज मिला होगा, because we have done some very nice variety of questions जो आपके एडवांस में आते हैं. ठीक है ना. चलो, लेट्स मूव टू द फिजिक्स पार्ट. ओके, फिजिक्स कितने बच्चों को आसान लगी? नाउ द स्टूडेंट्स जिसकी फिजिक्स बहुत खराब थी, उनके लिए दैट वाज अ गुड न्यूज. समवन स्टूडेंट लाइक मी
whose physics was बहुत बहुत ही खराब थी, तो उनके लिए बहुत आसान था. तो पेपर वन was, स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी दैट सर पेपर वन इज रियली रियली इजी, और जेई मेन लेवल का पेपर था. इज इट ट्रू? ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी आया था, यस, प्रोबेबिलिटी और एरिया का क्वेश्चन. हाँ, बहुत आसान लगा था. मीडियम 5, इजी 7. आउट ऑफ 17, 12 क्वेश्चंस वर इजी टू मॉडरेट, 5 क्वेश्चंस वर रिलेटिवली टफ. सो पेपर वन हम कह सकते हैं फिजिक्स इज ओवरऑल इजी टू मॉडरेट, और यू कैन से कंपैरेटिवली इजी, बेटर देन 2022, इजियर देन 2022. तो इसके कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं. बिकॉज ऑफ फिजिक्स कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है जेई एडवांस 2023 का, बिकॉज ऑफ द फिजिक्स सब्जेक्ट. ओके, यस सर, मुझे फिजिक्स मॉडरेट लगा, फिजिक्स वीक है. हाँ ठीक है, जिसको वीक लगा उनको मॉडरेट लग रहा है, तो डेट मींस अगर फिजिक्स आपकी थोड़ी भी ठीक होगी तो डेट मींस द पेपर वाज ऑन द इजी टू मॉडरेट लेवल. सो यस, इट वाज अ स्कोरिंग सेक्शन. सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ आर बेसिकली इन पेपर वन काइंड ऑफ ए जेई मेन फीलिंग दे रहा था. बच्चे बोल रहे थे सर जेई मेन टाइप की फीलिंग आ रही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आर इजी टू मॉडरेट and maths is little bit tough, so it's kind of a JEE main pattern. Okay, chemistry was also easy. Students were saying 7 were medium, 5 was easy, and I think some physical questions, physical chemistry questions were little bit lengthy and tricky. Otherwise overall paper was quite easy to moderate level. 12 questions out of 17 were easy and medium, and 5 questions itne to bante hain, so that means 5 questions were tough. Yes, yes students, you can share how many questions you have attempted in paper 1. jaldi se batao mujhe quickly, how many questions have you attempted out of 51? कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? लेट्स सी, 51 का 40% इज अप्रोक्सीमेटली 21-22 क्वेश्चंस. हैव यू अटेम्प्टेड मोर देन 20-22 क्वेश्चंस? अगर 22 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रैंक. यस, जल्दी जल्दी. यस, अर्थव, निधि, कनिक, हाइपोक्रेटस, अनिकेत प्रताप सिंह, 27, 52 क्वेश्चंस विद सम नेगेटिव, 52 क्वेश्चंस. Hippocrates paper 1 35 question, paper 2 39 questions, very nice. 36 paper 1, 39 paper 2. So students have done well in this paper. That means definitely they are confident of getting a good rank, but let's hope for the best that you don't do negative marking in all these sections. ठीक है, but overall pattern wise paper was relatively easy than 2022, you can say that pattern wise. Okay, physics chemistry were relatively easier, but maths was difficult, है ना. समवॉट 2022 से बच्चे कंपेयर कर रहे थे कि सर 2022 में जैसी मैथ्स आई थी, इनफैक्ट थोड़ा सा उससे टफ ही था, क्योंकि 2022 में भी न्यूमेरिकल टाइप सेक्शन वाज इजी, है ना. चलो, लेट्स मूव टू पेपर नंबर 2. सो आई थिंक अबाउट पेपर 1, माय समरी इज दैट आउट ऑफ 51, इफ यू हैव डन मोर देन 22 क्वेश्चंस करेक्ट, more than 22, that means 8 questions or 7 questions per subject, you are through. आपके एक अच्छी रैंक आने के चांसेस हैं, बट मेक श्योर कि यू डोंट गेट एनी नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग बहुत गड़बड़ करेगी. अगर आपने बिल्कुल सही स्पेसिफिक क्वेश्चंस चूज करके सॉल्व किए हैं, तो आई एम डेड श्योर अबाउट इट दैट इन पेपर 1 यू कैन से दैट इन पेपर 1 22 questions out of 51 is a safe score to get under 5000 rank and you get a good branch in IIT. तो 22 questions अगर आपने ठीक किए हैं, 22 to 25 एक रेंज ले लेते हैं, इतने अगर क्वेश्चन ठीक किए हैं तो यस यू आर थ्रू. ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. पेपर नंबर 2 में देयर वाज ओनली वन चेंज, एंड दैट वन चेंज वाज instead of matrix match the following, they asked paragraph type question, and paragraph type question mein it was incorrect response. That means the question was of numerical type या integer type. I am hoping that it is of integer type or decimal type, sorry, numerical type. बच्चों बताओ, I think numerical type questions थे. I think up to 2 decimal you have to give the answer. Yes, am I right? ना, all the sections were same, multiple correct was same, single correct was same, and integer type was same, and paragraph is I think numerical type, decimal type. That's why I think it has 0 negative marking. Yes sir, numerical पूछा था up to 2 decimal. देखा, बिल्कुल एकदम correct guess है मेरा. Yes, numerical type था. Okay, so this was the pattern, and this was again a common pattern, nothing extraordinary, nothing new in this pattern. ठीक है, again they have asked 51 questions, 17 17 17, total 51, and out of 60 plus 60 plus 60, that is 180 marks total. So 180 marks का पेपर था, that means total 360 marks का पेपर था. In 2022 also
इट वाज ऑफ 360 मार्क्स, तो 360 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो टोटल ओवरऑल। लेट्स सी द डिफिकल्टी। पर्सनली जो मुझे बहुत बच्चों ने बोला, आई डोंट नो, आई विल एक्चुअली टेल यू द real analysis when I see the paper, the full questions, but abhi based on the immediate reaction of the students just told me that sir paper 2 was little bit on the tougher side. Paper 2 mein tough questions the, there were 7 tough questions, 5 medium and 5 easy. 5 easy questions bhi the in the paper, ठीक है। इसमें भी कुछ आई थिंक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। आई वाज जस्ट वाचिंग सम 2 और 3 क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मुझे सेंड किए थे, है ना, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। आई थिंक वेक्टर क्वेश्चन वाज वेरी इजी, है ना, जो वेक्टर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सो सम क्वेश्चंस आई हैव सीन दैट यस it was quite easy and some questions were really tough. So the immediate reaction of students is that yes sir, the paper was relatively tough than paper 1. Though I am getting the mixed kind of reactions, because अगर आपका पेपर 1 अच्छा हुआ है तो आप बोलोगे सर पेपर 2 टफ था, अगर आपका पेपर 2 अच्छा हुआ है यू विल से पेपर 1 टफ था। तो बट स्टिल कहीं ना कहीं आई कैन से दैट यस पेपर 2 वाज डिफिकल्ट देन पेपर 1, है ना। तो इसकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी नीचे जा सकती है, इट कैन ड्रॉप डाउन बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी, बिकॉज ऑफ द चैलेंजिंग एंड लेंथी क्वेश्चंस। लेंथी काफी बच्चों ने बोला है कि यस सर लेंथी क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स में, देयर वर लेंथी क्वेश्चंस। यस, पेपर 2 अच्छा हुआ, दैट्स वेरी नाइस, है ना। तो इसमें क्या होगा, लो स्कोर में भी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन गेट अ गुड मार्क, है ना, तो लो स्कोर में भी अच्छा हो जाएगा। सर पेपर 2 अच्छा हुआ, पेपर वाज मॉडरेट, ओके, वेरी नाइस। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, that is physics. Physics was comparatively easier this time, but paper 2 से paper 1 से little bit on the upside, I can say that almost similar, है ना। paper 1 physics and paper 2 physics was almost similar, but slightly I can say that paper 1 से थोड़ा सा better था paper 2। ये students ने मुझे बोला, yes, am I correct? paper 2 was slightly on a better side, you can say that, है ना। कॉन्सेप्चुअल वाइज द क्वेश्चंस वर बेटर। पेपर 1 थोड़ा फिर भी बच्चों को इजी लगा, बट पेपर 2 में स्टूडेंट्स वर सेइंग कि नहीं सर थोड़ा हल्का सा पेपर का लेवल हल्का सा अप हुआ है, हालांकि ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे था, मॉडरेट लेवल पे ही था, बट स्टिल यू कैन से दैट, यस, ओके। सो पेपर 2 में यू कैन से दैट 7 वर इजी क्वेश्चंस, 5 इज मीडियम एंड 5 इज टफ, ओके। तो ये आपका पैटर्न था, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही था। वी कांट कंपेयर इट, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इट डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स प्रिपरेशन, इट डिपेंड्स कि आपकी तैयारी कैसी थी, आपको टाइम कितना मिला, है ना, उस पे डिपेंड करता है। बट व्हेन वी सी द ओवरऑल पेपर ना, व्हेन द जेई अपलोड द पेपर ऑन देयर वेबसाइट, देन वी कैन एक्चुअली टेल दैट ओके पेपर 1 एंड पेपर 2 में कितना डिफरेंस आ रहा था, है ना। तो आज मिडनाइट में वो पेपर रिलीज हो जाएगा एंड वी कैन डेफिनेटली सी दैट कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। बट यस, ओवरऑल व्हाट आई एम गेटिंग द जनरल आइडिया इज दैट पेपर 1 पेपर 2 आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल, ठीक है। पेपर 2 की फिजिक्स ज्यादा अच्छी गई, ओके। चलो लेट्स मूव टू द केमिस्ट्री पार्ट। केमिस्ट्री पार्ट में आई थिंक केमिस्ट्री पेपर 2 की थोड़ी अच्छे लेवल की थी देन पेपर 1। अगेन पेपर 2 was better than paper 1 according to the immediate reaction of students, जो मुझे बताया गया कि yes sir पेपर 2 की केमिस्ट्री was on little bit of lengthier side, थोड़ा मॉडरेट लेवल की थी। अगर पेपर 1 में इजी टू मॉडरेट था, उसमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप की थी। तो केमिस्ट्री में यू कैन से दैट मीडियम लेवल की केमिस्ट्री, मीडियम क्वेश्चन 7, 5 easy and 5 difficult. So that means it's an overall kind of similar type का ही था, almost similar type of pattern, but yes paper 2 की slightly on the tougher side. Organic tricky थी, ठीक है। I think इसमें किसके क्वेश्चन ज्यादा आए थे? I think organic के क्वेश्चन ज्यादा आए थे। The one teacher was telling me that 8 questions थे I think organic के, 8 questions was from organic and 4 and 5 questions from inorganic and physical chemistry. So organic was tricky, okay. तो यस, तो केमिस्ट्री का पेपर भी मॉडरेट लेवल का था। पेपर 1 वाज इजी टू मॉडरेट, दिस वाज नॉट इजी बट मॉडरेट लेवल, स्लाइटली ऑन द अपर साइड। तो ये आप बोल सकते हो कि यस दिस वाज द एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री एग्जाम, ओके। सर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी थे, हाँ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे, यस, ओके। नाउ पेपर 1 वर्सेस पेपर 2, नाउ इट्स क्लियर कि most of the students are saying paper 2 difficult than paper 1. So paper 2 paper 1 में मिला के जो कट ऑफ जाने वाली है मैथ्स की वो काफी लो जाने वाली है, बट ओवरऑल जो कट ऑफ है बच्चों ध्यान से सुनो, the overall cut off might get higher because of the
easiness of chemistry and physics paper than 2022 because 2022 में कट ऑफ बहुत नीचे गई थी because maths, physics, chemistry जो थे वो tougher side पे थे, लेकिन 2023 में maths is on the tougher side but physics and chemistry are on the easier side because paper 1 और paper 2 की difficulty almost बराबर है, paper 2 on the slightly upside और ऐसी फिजिक्स में पेपर 2 पेपर 1 की ऑलमोस्ट सेम है बट यू कैन से दैट स्लाइटली फिजिक्स पेपर 2 इज ऑन द अपसाइड, थोड़ा सा पेपर 2 का डिफिकल्ट, हल्का सा, मतलब यू कैन से दैट. ओके, सो ये ओवरऑल है बट बिकॉज ऑफ दीज टू सेक्शंस कट ऑफ माइट गो हाई दिस टाइम. ये ध्यान रखना, मतलब अगर 40% पे 4000 रैंक लास्ट टाइम आई थी फॉर एग्जांपल, तो इस बार 40% पे हो सकता है कि 5000 और मे बी 4500 रैंक आ जाए. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना. 360, आई एम जस्ट टेलिंग यू माय अप्रोक्सीमेट आइडिया. आउट ऑफ 360 मार्क्स यू कैन से दैट अगर आप 40% की बात करते हो, 40% दैट इज 144 मार्क्स. सो 144 मार्क्स में यू विल गेट 4000 टू 5000 रैंक के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट, है ना. जो लास्ट ईयर 2022 में इट वाज 4000 ओनली. The last year cut off was relatively low, तो इस बार का कट ऑफ बिकॉज ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा हाई जा सकता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत हाई जा सकता है, ये अभी हम उम्मीद कर रहे हैं. बट लेट्स JEE अपलोड इट्स पेपर, देन वी कैन एक्यूरेटली टेल कि ओके दिस वाज द these were the questions and we have to analyze them कि कितने क्वेश्चन टफ थे, कितने इजी थे, तो ज्यादा आइडिया लगेगा. we'll do a separate session on that. We will do a separate session on the expected cutoff once we see the paper, once we solve the paper. Tomorrow we are going to solve the paper. Day after tomorrow we'll be going to do a separate session on the cutoff marks. है ना, तो ज्यादा accurate idea लगेगा. But अभी जो एक immediate जो एक reaction से पता चल रहा है, that is कि यहाँ 40% पे you can get under 5000. Okay, चलो let's move to the next part. Overall difficulty level, I think it's but obvious. Maths is really challenging in both the papers, lengthy also. Chemistry, physics, you can say moderate, easy to moderate, but because of paper 2, it's moderate. So these two papers are moderate. This is challenging. So somewhat like JEE main exam paper, है ना. JEE main exam की तरह हो गया कि physics, chemistry is students are getting high marks and maths they are getting low marks. So कहीं ना कहीं दोनों subjects की वजह से the cutoff might get higher. But let us see the paper first and then we can do the session on what should be the expected cutoff. ठीक है? Okay? Yes. Now this is as per JEE Advanced website, as per JEE Advanced brochure, that common rank list में what should be the qualifying criteria. The first qualifying criteria is you have to give both the papers, paper 1 and paper 2. If you have not given any paper or at least one paper, you are out of the competition. Your OMR sheet and your key will not be judged. Okay? So यहाँ पे minimum percentage कितना बोला गया है, हमेशा यही देते हैं. It's 10% in each subject for general category. General category में it's 10%. 10% means अगर मैथ्स में 120 मार्क्स का पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, तो मिनिमम नंबर इन ईच सब्जेक्ट इज 12. फॉर जनरल EWS इट्स 9%. तो इट्स 9% मींस 10.8 समथिंग लाइक दैट. सो यू कैन सी द कट ऑफ, बट दिस कट ऑफ विल गो डाउन. बिलीव मी, दे आर सेइंग मिनिमम परसेंट टू क्वालिफाई फॉर 16,000 सीट्स इज 35%. And 35% of 360 you can imagine is 126 marks. 126 पे तो I think you can get around 5,000, 6,000 rank. So this, ये जो qualifying criteria है, this will go down automatically because of the relative performance of the students. Relative performance अगर थोड़ी कम होती है तो ये cut off भी नीचे चला जाता है. So do not believe this criteria कि 12 नंबर लेके आने ही पड़ेंगे तभी cut off होगा, ऐसा नहीं है. If I can show you the previous year data. In the previous year JEE brochure, it was shown that this was 10%, but can you see the last year data? 4.4%. 4.4%. मतलब कितने नंबर लाने थे out of 120 और 5 questions, 5 नंबर लेके आने थे, है ना. 15% was the minimum qualifying criteria, not 35%. So 15%. In fact, in JEE Advanced 2021, if I talk about JEE 2021, it was 17% and this was 5%. So मेरा यहां पे कहने का मतलब यह है बेटा कि हाँ पहले आ जाती है कट ऑफ्स, बिल्कुल आ जाती है कट ऑफ. This is given in your JEE brochure.
if you can see the website of the JEE Advanced and just go on the brochure of JEE Advanced, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, minimum percentage of marks prescribed for inclusion in the rank list. But because of the relative performance of the students, because of the toughness of the paper, ये automatically नीचे आ जाती है. अब मुझे एक बात बताओ, सपोज आई एम IIT, आई वांट टू इंक्लूड ए स्टूडेंट और मैंने बोला 126 मार्क्स पे मेरे को लास्ट रैंक देनी है. इज इट पॉसिबल? 126 मार्क्स 6000 तक खत्म हो जाता है. लेट्स से 6000 जिसकी रैंक है, द स्टूडेंट हु इज हैविंग 6000 AIR इज गेटिंग 126 मार्क्स. अगर वो ये क्राइटेरिया रखने लगे तो ऑब्वियसली मेनी सीट्स विल गेट वेकेंट इन, है ना, तो वो वेकेंट हो जाएंगी. सो वो नहीं हो सकता. तो दैट्स अ रिलेटिव basically the performance of the students. अगर students are performing too well तो ये क्राइटेरिया लगेगा, बट ऑब्वियसली स्टूडेंट्स विल नॉट परफॉर्म वेल. जो 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो यू कैन सी द डेटा. दिस इज द रियल डेटा of JEE Advanced 2022. 5% and 17% is the data of JEE Advanced 2021. Similarly in 2020 also. So मैं मान सकता हूं on an average 5% जाएगा. मतलब अगर आप मुझे विश्वास करो, if you believe me, this will go 5%. Accordingly this will go 4.5%, something like that. इस तरीके से आधा आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. This will go 4.5, this can go 2.5, है ना, 2.5. सिमिलरली और नीचे भी जा सकता है, 2.25 तक भी जा सकता है. So ये होगा मिनिमम कट ऑफ. 5% का मतलब हो गया ओनली 6 मार्क्स इन मैथ्स. 6 मार्क्स टोटल मिला के, नॉट इंडिविजुअल इन पेपर 1 पेपर 2. टोटल मार्क्स इन मैथ्स शुड बी आउट ऑफ 120. 6 मार्क्स होना चाहिए इन मैथमेटिक्स, 6 marks in chemistry and 6 marks in physics. और ओवरऑल मैक्सिमम 17% ये जा सकता है. मैक्सिमम 17%. 17% में 63 मार्क्स, और ओवरऑल आपको लाने हैं 360 में से 63 मार्क्स. तो यू आर एलिजिबल टू गेट ए सीट इन IIT. इफ यू आर नॉट क्रॉसिंग एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया, यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. हाँ, तो क्लियर तो हो ही जाएगा, क्वालिफाइड तो आप हो ही जाओगे. ओके, बट जेई में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सीट्स एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर रैंक. ओके, सो प्लीज ये मतलब ये मत सोचना कि यस दिस इज द एक्चुअल क्राइटेरिया. दिस क्राइटेरिया चेंजेस आफ्टर यू गेट द रिजल्ट. सो रिजल्ट विल बी ऑन 18th of June एंड उसके बाद दिस क्राइटेरिया विल डेफिनेटली चेंज. ओके, यस. सो paper discussion. Now this is the end of this analysis, and paper discussion of JEE Advanced 2023 will start tomorrow live 12 p.m. only on this Infinity Learn JEE channel. First we'll do at 12 p.m. we'll do the paper 1 discussion, and after 3 or 4 hours, maybe at 3 p.m. or 4 p.m. we'll do the discussion of paper 2. We can start early if we get the paper tonight. है ना? If JEE uploads the paper tonight, we can start early solving the paper and the detailed discussion of all the questions of both the shifts, paper 1 and paper 2. So please watch. अगर आपको, if you want real analysis, if you want detailed, accurate solutions, so please watch on Infinity Learn JEE channel. We'll be live tomorrow with paper 1 and paper 2, detailed solutions of all the subjects, physics, chemistry, math, all the 51 questions. ठीक है? तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब टू इन्फिनिटी लर्न JEE चैनल. तो कल हम आपसे मिलेंगे एंड विल डिस्कस द पेपर इन डिटेल. एंड आफ्टर दैट, मे बी डे आफ्टर टुमारो, आई विल बी टेकिंग ए सेशन ऑन एक्सपेक्टेड कट ऑफ. जब मैं आपको रियल आइडिया बताऊंगा एंड आई विल टेल यू कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आ सकती है एंड विच IIT टू चूज. ओके, सो देयर विल बी सेपरेट सेशन ऑन कट ऑफ, है ना, that I will take tomorrow, maybe day after tomorrow, after the discussion ends, पेपर आउट हो जाएगा. then I will tell you कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आएगी and which IIT you can enter, which branch you can take. We'll discuss each and everything in this session. Okay? Yes. So I hope everybody understood the analysis of today's paper. So the paper, maths paper was on the lengthier and difficult side. Physics chemistry paper was on the moderate side, and just like the pattern in JEE main. So but एक बार paper out होगा तो we can actually tell you the real analysis. This is based on the student immediate reactions, but still I think students are accurate most of the time. Okay, तो उसमें कोई problem नहीं है, लेकिन still एक बार paper आएगा तो we can see the paper, we can actually see that what type of questions have they asked. और फिर एक रियल एनालिसिस कल शुरू होगा 12 बजे. तो आई वॉन्ट एवरीवन टू बी लाइव ऑन इन्फिनिटी लर्न JEE चैनल एट 12 PM. मे बी बिफोर देन दैट विल नोटिफाई यू. अगर हमें सॉल्यूशंस जल्दी मिल जाते हैं, अगर हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं या पेपर आउट हो जाता है जल्दी, तो वी विल ट्राई टू कम अर्ली
है ना। तो जितना जल्दी हो सके विल ट्राई टू start this session and bring you the detailed analysis in front of you only on Infinity Learn JEE channel. Okay, so I hope everybody understood the analysis. Now I think it's time to just relax. और बहुत मेहनत आप लोगों ने की है, 2 साल 3 साल जितने भी मेहनत आपने की है, आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट. आप यहां तक आए, आपने एग्जाम दिया, एंड आई होप एवरीबडी गेट्स अ गुड रैंक इन IIT जब रिजल्ट आएगा, और बहुत प्राउड होने का मौका मुझे मिलेगा, है ना. आई एम होपिंग दैट. सो आई थिंक वी शुड wrap this session, and now you can just relax. You can come tomorrow for the analysis, and after that result will come, then we'll celebrate, है ना, साथ में we'll celebrate. Yes. So any doubts regarding anything? सर मुझे मैथ्स के लिए डर लग रहा है. देखो डरने वाली कोई बात नहीं है. अगर मैथ्स का पेपर टफ आया मेरे टाइम पे, इफ आई टेल यू इन 2006 जब मेरा एग्जाम हुआ था, यू कांट बिलीव पैटर्न चेंज हुआ था. इस बार भी थोड़ा सा चेंज हुआ है बिकॉज सिलेबस में चेंज हुआ है. इन 2006 पेपर वाज ऑफ 184 मार्क्स. कैन यू बिलीव कि 36 मार्क्स कट ऑफ था. 36 मार्क्स वाज द कट ऑफ. अराउंड 20% कट ऑफ था, है ना. सो डोंट लूज होप. ऐसा नहीं है, पेपर जब टफ आता है तो परफॉर्मेंस सबकी डाउन होती है. सो प्लीज डू नॉट लूज होप, ठीक है. और 36 मार्क्स कट ऑफ में मेरे टाइम हुआ था. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, उसके बारे में अभी ज्यादा मत सोचो. कल एनालिसिस अटेंड करो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा. देन यू कैन तब हम वी कैन डिस्कस इट कि क्या रैंक आ सकती है, क्या रिजल्ट आ सकता है, ठीक है. उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आई विल ऑल्सो टेल यू दैट विच कॉलेज टू टेक, विच ब्रांच टू टेक. तो पूरे काउंसलिंग सेशंस यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे होंगे, है ना. और बहुत अच्छे कॉलेजेस में ही आप जाओगे. सो जस्ट बिलीव योरसेल्फ, ठीक है. 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर से कितना मार्क्स बन सकता है निधि, इसके बारे में बेटा बात करेंगे बाद में, है ना. जब एक्चुअल पेपर आएगा विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. तो वहां पे बात करेंगे कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बनेगी और कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है. तब उसके बारे में बात करते हैं. ओके सर, आई हैव डन 21 इन पेपर 2, 22 इन पेपर 2. यस, मोर देन 21 and 22 इज अ गुड स्कोर because you have done 40% paper. So 40% पेपर में if your accuracy is 100% और 90 to 100%, then लगता है कि आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी. बट मेक श्योर मतलब कि इतने क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए आपके. So out of 51, if any student have done more than 21 or 22 marks, 22 questions, then it's a good attempt, but it should be with 100% accuracy. Okay? Chalo. So yes, so that's the end of this session, and thank you so much students for watching this live analysis. And I'm saying it again, we are coming live tomorrow from 12 PM onwards, maybe earlier than that, ठीक है. And हम will discuss both the papers, detailed analysis and accurate paper discussion we'll do with no errors, 0 errors, है ना. That's the legacy of Shri Chaitanya and Infinity Learn. Okay, so thank you so much and stay tuned. Thank you so much, and do not forget to subscribe to Infinity Learn JEE channel. Thank you, beta.